ای گپ راست است که سفر انسان را بسیار چیزا یاد میده، مگر چند سفر او ترهم است که در صدوقاتی منی روح مو یک کلان اثر میله. سفر مدینه، مشهد، نجف، کربلا، کازمین، سامره، امی تر سفره از منی مدی سفره را چنچی امکان داره که یک فیلم تیار شونه، مگر چند از اینا ممکن نیه. منی امزی ویدیو ما شموره کت خود خو ده چند شهرهای از نامو برم اور وہ چیزاره که ما خود مدیدم و تمام چیزاره ما شموره هم نشان میدم. وہ چیزاره که ما خود ما محسوس کردم احساس دور شاید ما ده ای ویدیو پورا نشان داده نتنم. ممکن هیچ نیه، مگر کوشش مامی است که او عظیم احساس را کم حسیش را دشمو هم برسندنم. السلام علیکم. سفری کویتا تا کربلا، دبی ایرپورٹ، از دبی طرف نجف ایرپورٹ، نجف ایرپورٹ از نجف طرف کازمین. یقیناً ای راه آسان نیه. ای او راه است که بریشی هر دل از چند ساله پورا سال دلش بیچین است که کی بلاوی مو بایا اور مو دو مقدس جای حاضری بدی. روزه امام موسی کاظم علیہ السلام، روزه امام محمد تقی علیہ السلام، کازمین طرف سامرہ. اپنے ذات دشمن کو دوزخی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو تو ہم جنتی سمجھتے ہیں. امر اور نہیں کو بس واجبی سمجھتے ہیں، اور دل فریب باتوں کو شاعری سمجھتے ہیں. بات کیا بنائیں گے، بات کیا بنائیں گے جب نام آئیں گے، حال ہم سنائیں گے جب نام آئیں گے. سید محمد آغا، سامرہ. پوری ہوتی ہیں. رزق، اولاد، شادی کے حوالے سے لوگ یہاں پر یہ مانتے ہیں یہاں اگر ہماری منت پوری ہوگی تو ہم سید محمد کے یہاں بکرا عطا کریں گے، ان کو ہدیہ کریں گے. تو یہاں پر وہ الحمدللہ پوری ہوتی ہے. بہرحال یہ تو ہر آدمی، ہر امام باب الحوائج ہے، تو لہٰذا ہر جگہ منتیں پوری ہوتی ہیں، لیکن ان کے ہاں خاص طور سے یہ چیز منسوب ہے. یہاں پر ایک دھاگا ملتا ہے، اس کو مس کر کے لے جانا پڑتا ہے. بہرحال ساری چیزیں موجود ہیں. تو تعویذ سید محمد تو تعارف ہو گیا کہ یہ 10ویں امام کے بیٹے ہیں، 11ویں امام کے بھائی ہیں اور 12ویں امام کے چچا ہیں. تو داعش نے قبضہ کر لیا تھا یہاں پر، لیکن اللہ جن کو بچانا چاہتا ہے ان کو کوئی بجھا نہیں سکتا. جس چراغ کو روشن کرنا چاہتا ہے اس کو کوئی بجھا نہیں سکتا. خدا سے دعا کرتے ہیں خدا ہم سب کی زیارت کو قبول کرے اور پروردگار ہم سب کو بار بار زیارت سے مشرف کرے. نیت کر لیں کہ زیارت سے محمد پڑھتے ہیں پرفتن. حرم امام علی النقی علیہ السلام، حرم امام حسن عسکری علیہ السلام. الرحمن الرحیم.
ज़ाहिरीन मोहतरम, हम हैं इस वक्त हरम इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम और हरम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम, 10वें इमाम और 11वें इमाम की बारगाह में तशरीफ़ लाए हैं। और यहाँ पर मज़ार अक़दस है जनाब नरजिस खातून जो 12वें इमाम की वालदा हैं और जनाब हकीमा खातून जो 12वें इमाम की बीवी हैं। तो यहाँ पर वो इनकी क़ब्र मुबारक है। एक ही ज़री के अंदर 4 क़ब्रें हैं। इंशाअल्लाह हम उनकी ज़ियारत से मुशर्रफ़ होंगे। जिस जगह पर आप खड़े हैं ये शहर मुक़द्दस है सामर्रा। इसका असल नाम था सुर्रा मन राय। जो देखे वो खुश हो जाए, जो देखे मसरूर हो जाए, उसे कहते हैं सामर्रा। मतलब ये इतना यहाँ के दिल नशीन मनाजिर हुआ करते थे और इतने अच्छे मंज़र हुआ करते थे कि लोग यहाँ पर सयाही के लिए आया करते थे पहले ज़माने में। क्योंकि एक तो दरिया था बहुत बड़ा, फिर इतने यहाँ पर मसलन बागात थे अंगूर के, सामर्रा के अंगूर मशहूर हैं। तो ये सारी चीज़ें, तो बादशाह जो अपने ज़माने में होते थे वो लोग यहाँ पर शिकार के लिए आया करते थे, यानी कि अच्छा समझा जाता है, इस वजह से इसको सुर्रा मन राय कहा जाता था। अच्छा, बनी अब्बास की जो हुकूमतें गुजरी हैं तो उनका जो पाए तख्त था, जहाँ दारुल खिलाफा था, वो था बगदाद, ठीक है। उनकी जो फ़ौजी अड्डा था, फ़ौजी छावनी थी, वो थी सामर्रा में, ठीक है। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का नाम क्या है? हसन है। अस्करी क्यों कहते हैं? अस्करी के माना होते हैं फ़ौज वाला, लश्कर वाला, ठीक है। अस्करी के माना, क्या इमाम के पास कोई फ़ौज थी? इमाम के पास कोई लश्कर था? नहीं। इमाम को जब मदीने से लेकर आए तो इस जगह पर इमाम को कैद में डाला गया था, यानी इस फ़ौजियों के दरमियान। तो फिर इमाम का लक़ब क्या पड़ गया? अस्करी। यहाँ पर इमाम जहरे, वजह क्या थी? वजह ये थी क्योंकि इन मलूनों ने पढ़ रखा था कि एक आखिरी बेटा होगा रसूल का जिसका नाम मेहदी होगा, और वो जब ज़हूर करेगा तो दुनिया से जुल्म को ख़त्म कर देगा और दुनिया को अदल इंसाफ से भर देगा। तो उन्होंने ये कोशिश की कि इनको इनके खानवादे से अलग किया जाए, कैद खाने में डाला जाए। जब ये अपने खानवादे के पास जाएंगे ही नहीं तो फिर औलाद कहाँ से होगी? वही जनाब मूसा वाला वाक़या कि फ़िरौन ने 70,000 बच्चों को कत्ल कराया, वही सिचुएशन यहाँ भी थी। रोज़ाना दाइयाँ आती थी, जनाब नरजिस खातून को चेक करती थी और उनको कैद खाने में रखा था। लेकिन अल्लाह जिसको बचाना चाहता है उसको कोई मार नहीं सकता। जनाब मूसा की विलादत हुई और फ़िरौन के दरबार में परवरिश हुई। इसी फ़ौजी छावनी में जनाब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की विलादत भी हुई। जब जनाब हकीमा घर पे आई तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा कि बहन यहाँ पर तुम आज रुक जाना, और क्योंकि आज मेरे यहाँ विलादत होने वाली है। तो कहा कि भाई मैंने तो कोई आसार देखे नहीं जो आसार होते हैं विलादत के। कहा कि ये हुज्जत खुदा है, अल्लाह के यहाँ देर नहीं तो अंधेर नहीं, बल्कि उनके यहाँ जो नूर होता है वो आ जाता है। बहरहाल सारी चीज़ें पूरी वाक़या तारीख़ में मौजूद हैं। सुबह की नमाज के वक्त इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर हुआ, उनकी विलादत हुई। यही वो जगह थी, 255 हिजरी में इमाम की विलादत हुई है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहरहाल जहन में रखें। तो जब विलादत हुई तो 5 साल तक इमाम को पर्दे में रखा। इमाम ने जो ख़ास साहबी तो उनको बताया कि मेरे बाद इमाम ये बच्चा है, ठीक है। इसलिए ये इमाम का घर था, ये इमाम हसन अलैहिस्सलाम का घर था। अपने घर ही में दफन किया गया इमाम अली अलैहिस्सलाम को भी और इमाम हसन अलैहिस्सलाम को भी। और जब हुए तो ये सामने ग़ैबत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम, जहाँ से इमाम ने ग़ैबत अख्तियार की, पर्दे ग़ैबत में गए। क्योंकि इमाम जब इस दुनिया से जाता है और शहादत होती है, ये मरता है इमाम, तो फिर क्या होता है? वफ़ात पाता है। तो इमाम की नमाज जनाजा इमाम ही पढ़ाता है, गैर मासूम इमाम की नमाज जनाजा नहीं पढ़ाता। तो जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ज़हर दगा से शहीद कर दिया गया तो इमाम का जनाजा था। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम 5 बरस के थे और वो आए और इमाम को गुस्लो कफन दिया, इमाम की फिर नमाज जनाजा पढ़ाई। जब अभी तक किसी को पता नहीं था कि इमाम की विलादत, जब नमाज जनाजा पढ़ाई फिर उनका दिमाग खटका और कहा कि इमाम की नमाज जनाजा इमाम ही पढ़ाता, लिहाजा बच्चे की विलादत हो चुकी है, इनके बाद इमाम ये है। तो फिर इमाम ने जब तदफीन हो गई, सब कुछ हो गया, तो उसके बाद जब फ़ौजियों ने फिर इमाम का पीछा किया, इमाम को ताकि पकड़ लें, उनको कत्ल कर दें, तो इमाम अपने घर के सरदाब में गए। ये सरदाब है, बेसमेंट, क्योंकि अरब में जब घर बनाया जाता है उसमें सरदाब बनाया जाता है। गर्मी क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा होती है, सर्दी, तो इस वजह से हर घर में यहाँ तकरीबन सरदाब होता है, बेसमेंट होता है। तो इमाम अपने घर में गए, सरदाब में गए। तो सरदाब में वो जगह है जहाँ से इमाम ने ग़ैबत सुग़रा अख्तियार की।
इमाम गैबत में चले गए, गैबत सुगरा में रहे। गैबत सुगरा का मतलब ये होता है इमाम अपने ख़ास साहबी से मुलाकात करते थे। 4 नायब थे इमाम के ख़ास, हुसैन बिन रू, उस्मान बिन सईद, मोहम्मद बिन उस्मान और मोहम्मद बिन समरी, 4 ये इमाम के नायब थे। इनसे इमाम अपने ख़ास साहबे से मुलाकात करते थे और अपने शो के नाम पैगामात पहुँचाते रहते थे। 70 साल के बाद फिर इमाम गैबत कुबरा में चले गए, ठीक है, और आज तक गैबत कुबरा में है। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि पूरा आप देख रहे हैं हरम मुक़द्दस, ये पूरा इलाका फौजी छावनी था। आज यहाँ पर कोई शिया नहीं है, ये पूरा वहाबियों का इलाका है, सुन्नियों का इलाका है। और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम का रोज़ा जगमगा रहा है। इस रोज़े को कई बार ढाने की कोशिशें की हैं, मिसमार किया गया। तकरीबन 2008 या 2009 में पूरे हरम को उड़ा दिया गया था, क्योंकि पूरा हरम, ये पूरा मैं रिसर्च किया कि पूरा सुन्नी इलाका है, पूरा हरम सुन्नियों के हाथ में था। मुतवल्ली यहाँ सुन्नी थे, पूरे जो आप आए ना जहाँ से गाड़ी ने उतारा वहाँ से यहाँ तक पूरा बाज़ार था। ये जो होटल वगैरह थे, लोग यहाँ पर ज़ायरीन रुकते थे। लोग ये कहते थे कि हम ख़रीदारी सामान से करेंगे, जो ज़ायरीन आते थे। इतना यहाँ पर इतना मतलब माशाल्लाह इतना बाज़ार था, तो वो किसके हाथ में था? सब सुन्नियों के हाथ में था। तो आते थे यहाँ पर, लेकिन जब ईमान फरोश लोग होते हैं, बद किरदार लोग होते हैं, उन्होंने अपने ईमान को बेचा और ज़री में चारों तरफ बमों को फिट किया। पूरा रोज़ा जो है वो उड़ा दिया गया था। सामने जो है शायद तस्वीर लगी हुई थी, अब हटा दी यहाँ से, देखिएगा। तो 2012 में जब मैं आया था तो मैंने खुद ट्रैक्टर ट्रॉली से यहाँ पर मलबे को उठाते हुए मैंने अपनी नज़रों से देखा, यानी पूरे रोज़े को उड़ा दिया गया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 7 से 8 साल में जो है अल्लाह ने बेहतरीन तरीके से जो है चाहने वालों ने कुमक की, मदद की और आज शानदार इमाम का रोज़ा बना हुआ है। उन मलूनों का कोई नामो निशान बाकी नहीं, लेकिन हरम इमाम अस्करीन आज भी जगमगा रहा है और ज़ायरों की आमाज का बना हुआ है। बहरहाल ये सब शरफ़ होता है। वही कहना कि वमा तशाऊन इल्ला इंशाअल्लाह, जो अल्लाह की राह में ज़िंदगी बसर करते हैं अल्लाह उन्हें हर दौर में ज़िंदा रखता है। तो अब्बासी ख़ानदान का कोई फ़र्द आज बाकी नहीं, लेकिन मोहम्मद के फ़र्द आज भी हर दौर में ज़िंदा हैं। तो दुआ करते हैं परवरदिगार हम सब की ज़ात को कबूलियत अता फ़रमाए और हमें सच्चे मानों में ज़ायरीन इमाम, आशिक़ान इमाम बनने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हम सब की तमाम मुरादें, हाजतों को पूरा फ़रमाए। जो परेशान हाल हैं सबकी परेशानियों को दूर फ़रमाए और इमाम ज़माना के ज़ोर में ताजील फ़रमाए और परवरदिगारा हमें इमाम के साहिब अंसार में शुमार फ़रमाए। बड़ी खुशनसीबी है कि हम आज इमाम वक्त के घर पर आए, इमाम ज़माना के घर पर हम हाज़िरी दे रहे हैं। ये इमाम का घर है। इंशाअल्लाह अभी नमाज होगी, नमाज के बाद अभी हम लोग ज़ियारतें करेंगे, ठीक है। नमाज होगी, अजान होगी, नमाज होगी, नमाज के बाद सामने जो दरवाज़ा है, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, वहाँ से हम लोग बाहर जाएंगे, वहाँ खाना खाएंगे। सुफरा इमाम हसन अलैहिस्सलाम, दस्तरखान लगेगा। नज़रों को मेरे लायके दीदार बना दे, नज़रों को मेरे लायके दीदार बना दे और पर्दा जो पड़ा है मेरी आँखों से उठा दे। हादी ये ज़मां का रुख़े पुरनूर दिखा दे। हादी ये ज़मां का रुख़े पुरनूर दिखा दे। अल्लाह मुझे लाश करे, बुलंद पड़े, अल्लाह मुझे लाश करे मेहदी और शबीर के अंसार में शामिल हो मेरा नाम। शबीर के अंसार में शामिल हो मेरा नाम। जो हुई का हो मेरे
محشر میں وہی ہو میرا الجام جوہر کا ہو محشر میں وہی ہو میرا الجام خاک قدم حضرت شبیر بنا دے خاک قدم حضرت شبیر بنا دے اللہ مجھے لشکر مہدی اور بلند اللہ مجھے لشکر مہدی اور دیکھوں نہ اگر اٹھتے ہوئے پیدائے غیبت دیکھوں نہ اگر اٹھتے ہوئے پیدائے غیبت اور آئے جو میرے بعد یہاں حضرت حجت آئے جو میرے بعد یہاں حضرت حجت تربت میں اب صدا حسین تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین اور چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر کاظمین طرف کربلا یتیمان مسلم اس سرزمین پہ گزرا سرور پہ یہ بھی صدمہ اس سرزمین سے گزرے سجاد سر جھکائے اے چاند اور مارے گئے یہیں پر بے دردیوں ستم سے مسلم کے دونوں بیٹے زینب کے دونوں پیارے اے چاند کربلا کے آپ لوگوں کی دائیں اور بائیں طرف نہر فرات ہے اصل نہر فرات یہ ہے زیارت اون بن عبداللہ کچھ دیر لپٹ جا سینے سے پھر باپ کا سینہ
ملنا نہیں سو جانا جہاں پھوپھیاں کہہ دے سو جانا جہاں پھوپھیاں کہہ دے چاہے شام کا وہ زندہ ہووے میری سکینہ اس طرح نہ رونا جان دے مجھے میدان کی طرف درد دل کا علاج کرتا ہے، عشق اس سے سماج کرتا ہے۔ کربلا میں وہ کل اکیلا تھا، آج ہر دل پہ راج کرتا ہے۔ کربلا ہوٹل۔